Hello everyone, welcome back to my channel Sapna Educational Video. So in this video we are learn about what is cell, what is the structure of cell, who discovered cell. ये सभी चीजें we are discuss in this video only. Okay. So before the starting the video, we used to know what is cell. We should know what is cell. So the definition will say cell is the structural and functional unit of our life. What is cell? Cell is the structural and functional unit of our life. Means सेल क्या होता है, आसान भाषा में समझिए, ठीक है. सेल क्या होता है? तो सेल होता है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ. वी ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स, एनिमल्स, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं कहीं ना कहीं वो सेल से ही बने होते हैं, एक सेल से बने हुए होते हैं. हमारी बॉडी में हमारे हैंड्स, we human being, in lots of cells are present in our body only. Okay, in birds only, in animals, insects, there are lots of cells. So that topic cells we discuss in this video only. What is cell? So as you can see on the board, what is cell? The definition of cell is the cell is the structural and functional unit of our life. So our next is who discover cell is discovered by Robert Hooke. Who discovered cell? We used to know, na? We know that all living things are made up of a cell. We know that. So who discovered cell? We also have to know who discovered cell. So Robert Hooke discovered cell. Robert Hooke. Who was Robert Hooke? Who was Robert Hooke? Robert Hooke. The cell were discovered by Robert Hooke. Robert Hooke were the people who discovered cell. Okay. तो सेल की खोज किसने की थी? आसान भाषा में समझिए, हिंदी भाषा में सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने. कितने? in which year? So we are written here 1665 में सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी. वी ऑलरेडी फिनिश व्हाट इज सेल. तो आप लोग समझ गए. वी ह्यूमन बीइंग, all living things, means we are also living things, we are also living organism. Animals is also living organism, birds is also living organism, insects is also living organism. So we know that all living things means we human being and animals, birds are made up of a cell, are made up of a lots of cell. We should know that. Okay. So the cell were discovered by Robert Hooke. We know in which year? 1665. Our next question is why cell is known as the building blocks of life. Why cell is known as the building blocks of life? सेल को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ के नाम से क्यों जानते हैं? तो आप हम लोग यहाँ पे लिखेंगे as you know that all living things are made up of cell. We should know that all living things are made up of. We already know कि जितने भी सेल, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हम एनिमल्स, बर्ड्स, ये सभी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है. वो सभी क्या होती हैं? सेल से बनी होती हैं. ठीक है. तो एज यू नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ अ सेल. सो दिस रीजन, for this reason cells are known as building blocks of life. Okay, so our question is why cell is known as building blocks of life. सेल को हम बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से हम क्यों जानते हैं?
तो जैसा कि हम लोग को पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं सेल से बने होते हैं। तो यही प्रोसेस को, यही रीजन है कि सेल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहलाते हैं। तो हम लोग अब तक क्या देख चुके? सेल किसे कहते हैं? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। और सेल की खोज किसने की थी? Why cell is known as the building blocks of life. We have finished with this. Okay. Next, we can see the types of cell and structure and shape. Okay. As we know that there are two types of organism. What we have to know? There are two types of organism. You can see on the board. जो cell है उसके organism जो होते हैं वो two types के होते हैं. We know that we are also organism. Okay. So we know that. So how many organism of cell? Okay. So first is unicellular organism and second is multicellular organism. First is unicellular organism and second is multicellular organism. तो हम लोग जानेंगे कि पहला जो unicellular organism है तो वो होता क्या है. ठीक है. तो organism which are made up of one cell. Organism, those organisms which are made up of one cell. ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीवाणु जो एक ही कोशिकाओं से, एक ही सेल से बने होते हैं, उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे तो वी ह्यूमन बींग्स, बट इट्स रॉन्ग बिकॉज हम लोग में एक सेल नहीं होता, हम लोग में लॉट्स ऑफ सेल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल हम नहीं होंगे. आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं. बैक्टीरिया, अमीबा एंड पैरामीशियम. क्या होगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, जो एक सेल से बने होते हैं. तो ये बैक्टीरिया जो होता है, हम लोग डिस्कस किए कि वी ह्यूमन बींग्स, वी आर ऑल्सो ऑर्गेनिज्म. तो हम लोग में लॉट्स ऑफ, मिलियंस ऑफ, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं. ठीक है. ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं. क्या बैक्टीरिया और अमीबा में भी होते हैं? नहीं. बैक्टीरिया और अमीबा में एक ही सेल होते हैं. ठीक है. एक ही सेल होते हैं. और उसके बाद क्या होता है? और पैरामीशियम में भी एक ही सेल होते हैं. तो इसीलिए हम लोग को, जो ये भी तो ऑर्गेनिज्म ही है, ये भी लिविंग थिंग्स ही है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, लेकिन ये इनमें एक सेल होता है. इसीलिए हम लोग सेल को दो भागों में बांटे हैं, जो यूनिसेलुलर है और मल्टीसेलुलर है. तो इसमें एक सेल हो गया. तो ये सभी क्या आ जाएंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हो जाएंगे. अब हम लोग देखते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जैसे वी ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सभी क्या होती है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ जाएंगी. एज यू कैन सी ऑन द डेफिनेशन, those organisms which are made up of 2 or more cells are known as multicellular organism. What is the multicellular organism? Organism which are made up of 2 or more cells. जो 2 और 2 से अधिक सेल से बने हो वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आएंगे. तो हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे. एग्जाम्पल, प्लांट्स have a lots of cell. Plants have a millions of cell. Okay. And animals also. Plants, animals, humans, human being, they have a lots of cells. They have a trillions of cells. That's why we know that a multicellular organism. Okay. Multicellular organism. तो हम लोग समझ गए क्या होता है ऑर्गेनिज्म. सेल के अंदर हम लोग ऑर्गेनिज्म, सेल में और लिविंग थिंग्स में भाई क्या रिलेशन है कि हम लोग ऑर्गेनिज्म को सेल में ला दिए. तो यही रिलेशन है कि यूनिसेलुलर अलग होता है, मल्टीसेलुलर अलग होता है. इसमें एक सेल होता है, इसमें बहुत सारे सेल होते हैं. जैसे एग्जाम्पल आप लोग देख लिए, एक तरफ बैक्टीरिया, एक तरफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे. तो अब हम लोग देखेंगे उसका सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, शेप एंड साइज के ड्राइंग से हम लोग समझेंगे कि उसका शेप एंड साइज कैसा होता है. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो एनिमल सेल, यहाँ पे हम प्लांट सेल को ड्रॉ किए हैं. जो सेल होता है उसका स्ट्रक्चर,
देखिए स्ट्रक्चर आप लोग कहेंगे कि सेल गोला गोला होता है, ऐसे राउंड राउंड होता है, सर्कल टाइप होता है, बट नॉट, इट्स नॉट लाइक दैट। कभी कभी वो आपके बॉडी पे निर्भर करता है कि किसी किसी में सेल ऐसे होता है, किसी किसी में अमीबा अलग होता है, पैरामीशियम अलग होता है, प्लांट सेल में अलग होते हैं और एनिमल सेल में अलग होते हैं। मतलब सेल कैन नॉट डिफाइन द शेप एंड साइज। ओके, सेल का शेप और साइज फिक्स नहीं होता है, वो किसी भी साइज में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ की हूँ एक प्लांट सेल। अब हम लोग सेल के पार्ट्स के बारे में, उनके नेम्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि इनका पार्ट्स का नेम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ये डॉट 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 डॉट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। देखिए साइटोप्लाज्म। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ये है सेल मेम्ब्रेन, सेल का मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब जो आउटर कवर होता है। अगर ये सेल मेम्ब्रेन ना हो तो वो जो जितने भी जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जितने भी साइटोप्लाज्म है, वो कम आउट हो जाएंगे, सेल के बाहर आ जाएंगे, जो इट विल हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, फॉर एनी ऑर्गेनिज्म बॉडी। सो सेल मेम्ब्रेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए अब ये क्या है, ये क्या है? न्यूक्लियस। क्या? न्यूक्लियस। देखिए ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। कॉन्ड्रिया। आप लोग देख सकते हैं ये जो आउटर कवर एरिया है, ये जो मैंने राउंड बनाया है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, ये जो बीच में बड़ा सा राउंड सा है, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस आप लोग ये देख सकते हैं। अब न्यूक्लियस का भी तो आउटर कवर होगा। अगर आउटर कवर नहीं होगा तो उसमें अंदर जितने भी, उसके भी अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो न्यूक्लियस है तो वो तो केम आउट हो जाएंगे ना। तो इसीलिए हम इसको भी कवर बनाया गया। तो इस कवर का नाम क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और ये है वैक्यूल। देखिए जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो जेली लाइक स्ट्रक्चर, जो लिक्विड स्ट्रक्चर है, जैसे ये डॉट 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 मैंने दिया है, उसके अंदर ये वैक्यूल्स होते हैं। और वैक्यूल्स के बाद क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सो मेनी थिंग्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ओनली। तो you can see on the diagram is too much important. You can see this is a plant cell. What is this? This is a plant cell. You can see jelly like structure is a cytoplasm. Cell membrane, you can see the outer cover area is a cell membrane, and nucleus is here, the round, and mitochondria. In cytoplasm there are lots of vacuoles like vacuoles, mitochondria, and nuclear membrane. The nucleus outer cover area is known as nuclear membrane. You can see the structure of the cell. You can see. तो ये जो सेल है, इसका कोई साइज डिपेंड नहीं करता। ये बहुत ही, ये एग सेल में भी हो सकते हैं, ये बहुत सारे शेप के हो सकते हैं। उसका कोई फिक्स साइज एंड शेप नहीं है कि मान लीजिए राउंड होते हैं तो राउंड ही सिर्फ सेल होंगे। नो, सेल इज एनी स्ट्रक्चर, सेल बिकम एनी स्ट्रक्चर। किसी भी साइज के सेल हो सकते हैं, इसका कोई स्ट्रक्चर, इसका कोई शेप एंड साइज नहीं होता है। बस जान लीजिए कि इसके पार्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल। ये सभी सेल वॉल क्या होते हैं? प्लांट सेल में भी होते हैं। सेल मेम्ब्रेन को सेल वॉल भी बोलते हैं। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल बहुत ही डिफरेंस है इन लोगों में। तो आप देख सकते हैं सेल का स्ट्रक्चर। आई होप कि आप लोग को सेल पूरा समझ में आया होगा। सेल किसे कहते हैं? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था सेल और ऑर्गेनिज्म में। मीन्स सेल के अंदर ऑर्गेनिज्म कहाँ से आ गई? वी नो दैट व्हाट इज सेल, सो फ्रॉम वेयर द ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम, that all are clear in this video. Okay, so let's meet to another video.